Good morning, students. Today we are going to learn about logarithmic differentiation. Logarithmic differentiation है, उसको कैसे अप्लाई करना है, क्या है, उसे देखने से पहले हम जो अभी तक पढ़ गए उसको रिकॉल कर लेते हैं. You know, derivative of a raised to x is a raised to x इंटू लॉग ए बेस ई. हमने ये एक्सपोनेंशियल के फंक्शन के देखा था, तब देखा था ये फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए बेस ई एंड डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स. ये दोनों फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखी थी. In very beginning, we learned this formula also. d dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1. Right? तो ये जो दो फॉर्मूला है, this and this. In this formula, a is constant and x is some variable. And in this formula, x is variable and n is some constant. So ये क्या देखा हमने, जो हमने ये टू टाइप्स देखी है, इसमें ये जो था वो कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल था. ये क्या था? कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल था. और यहाँ पे वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट था. तो ये जो था वो वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट था. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, वो रहेगा वेरिएबल रेज टू वेरिएबल. राइट? सो द डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री फंक्शंस यू हैव टू, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है, कब कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है. राइट? क्योंकि पहले से ये दो में आप कंफ्यूज थे और अभी ये तीसरा आ गया, वेरिएबल रेज टू वेरिएबल. सो नाउ कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल मीन्स यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आपको यूज करना है. वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट, दैट इज आपको एक्स रेज टू एन वाली फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करनी है. और वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, दैट इज लाइक दिस, एक्स रेज टू एक्स आएगा, सपोज साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स दे दिया. तो देखो यहाँ पे देर इज नो कांस्टेंट, दिस ऑल आर वेरिएबल, सम वेरिएबल्स इन एक्स, दिस इज गिवन. सो इन दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स you have to apply logarithmic differentiation. So now how to solve these logarithmic differentiation questions? So let us see. Suppose you are given one function y is equal to, you are given some function y is equal to fx raised to gx. Right? So f is a function of x and g is also a function of x. So this is variable raised to variable, there is no constant. So in this type of questions, you have to take logarithmic functions both sides. So you have to apply logarithmic function both sides. That's why it's called a logarithmic differentiation, right? So applying log both sides on base e. So log y base e is equal to log of fx raised to gx base e. Now you have one formula of logarithmic function, you know, log of x raised to n is equal to n log of x. You have this formula, log of x raised to n is n log x, right? So applying this formula to this equation, this equation becomes log y base e is equal to gx into log of fx base e, right? Now differentiating this equation with respect to x both sides. So differentiating with respect to x, right? Derivative of log y. Now this is a function in y and we are going to differentiate with respect to x. That is, we have to apply chain rule here. So applying chain rule, derivative of log y, that is 1 upon y and into multiply by dy by dx. Right? Now this gx and this is log fx, so we have to apply product rule here, u into v. So u as it is, that is
gx as it is and derivative of log fx. Now derivative of log fx means derivative of log bracket, derivative of log bracket, and derivative of log bracket is 1 upon bracket, that is fx, and derivative of fx again, that is f dash x, derivative of fx again, that is f dash x, right? Plus now log fx base e as it is, log fx base e as it is, and derivative of gx, that is g dash x, derivative of gx, that is g dash x, right? So this becomes dy by dx is equal to y into gx into f dash x upon fx plus log fx बेस ई इंटू जी डैश एक्स। तो ये जो हो गया वो कैसे हमें डिफ्रेंशिएशन करना है ये फॉर्मूला से आपको पता चलेंगे, राइट? तो इसका जो एग्जांपल है वो हम इसके बाद में देखते हैं। तो वो सीखने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। सपोज यू आर गिवन y इज इक्वल टू x रेज टू x इज गिवन, y is x रेज टू x function is given, right? So this is variable raised to variable form, so we have to take both sides log. So taking both sides log, what we get? This implies log y is equal to log of x raised to x हो जाएगा, right? Applying log power rule, so log y is equal to power जो है वो फ्रंट साइड में आ जाएगा, तो x log x हो जाएगा ये। Now differentiating with respect to x, therefore differentiating with respect to x, तो क्या होगा? log y का डेरिवेटिव 1 upon y आ गया, राइट? और y का डेरिवेटिव dy by dx applying chain rule. Now this is u into v, so x as it is, log x का डेरिवेटिव 1 upon x हो गया, log x का डेरिवेटिव 1 upon x प्लस log x as it is और x का डेरिवेटिव 1 आ गया, सो यू विल गेट dy by dx। तो आंसर जो है dy by dx इज इक्वल टू y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, x अपॉन x दैट इज 1 प्लस log x हो जाएगा y इंटू 1 प्लस log x। तो ये आपका आंसर आ गया, राइट? इसको जो ये एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो मैं और मेथड बताता हूँ, सेकेंड मेथड इसके लिए और, राइट? हमारे पास फॉर्मूला थी e रेज टू लॉग x बेस e होता है, तो उसका आंसर आता था x। ये हमने लॉग के प्रॉपर्टीज में देखा था, राइट? तो जो हमारे पास ये x रेज टू x है, राइट? तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू ई रेज टू x log x लिख सकता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो ऐसे हो जाएगा ई रेज टू लॉग x रेज टू x बेस e हो जाएगा, बराबर? तो ये जो x है वो पावर रूल अप्लाई करेंगे तो फ्रंट साइड में आ जाएगा, तो क्या होगा? x इंटू लॉग एक्स होगा, तो x इंटू लॉग एक्स हो गया, राइट? तो पावर जो है वो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, तो ऐसे जो फंक्शन दिए है वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, इसमें जो पावर है उसको पावर को आप आगे लिख के x इंटू जो पावर है वो पावर इंटू लॉग ऑफ फंक्शन लिख सकते हो। यहाँ पे फंक्शन में क्या था? बेस में x, तो वो फंक्शन x था तो x लिख दिया। नाउ अप्लाई ई रेज टू ब्रैकेट फॉर्मूला, सो dy by dx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इज इक्वल टू ई रेज टू x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, ई रेज टू एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ दिस इज ब्रैकेट दैट इज एक्स इंटू लॉग एक्स, राइट? सो dy by dx is equal to, now e raised to x log x, e raised to x log x is nothing but our x raised to x, so this is x raised to x. Now x as it is, log का डेरिवेटिव 1 upon x प्लस log x as it is, और x का डेरिवेटिव क्या आया? 1। तो हमारा जो फाइनल आंसर था
डिवाइड बाई डी एक्स, ये एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स आ जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बोथ आंसर आर सेम, बट मैं आपको, ये तो सिंपल फंक्शन था तो इसमें बोथ साइड आपने लॉग लिया तो अच्छी तरह से आ गया और आपको अच्छा लगा होगा, मगर मैं आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए बोलूँगा कि ऑलवेज चेंज योर वेरिएबल रेज टू वेरिएबल फॉर्म इनटू ई रेज टू लॉग, जो वेरिएबल जो फंक्शन दिया है वो करके पावर है उसको आगे ले लो। तो ये ई रेज टू एक्स की फॉर्मूला से चेन रूल अप्लाई करके आप बहुत ही जल्दी आप टाइम सेविंग के साथ विदाउट एनी मिस्टेक कर सकते हैं, राइट। और आगे जो हमने थियोरी में देखा था उसको भी हम एक फॉर्मूला की तरह जो आप याद रख सकते हैं, तो इसका भी आंसर आ सकता है। तो वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही काम में आएगी टाइम सेविंग के लिए, शॉर्टकट्स मेथड के लिए, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। सपोज फंक्शन इज गिवन एफ एक्स रेज टू जी एक्स इज गिवन, फंक्शन इज एफ एक्स रेज टू जी एक्स, हमने वहाँ पे क्या लिया था फंक्शन में यू एक्स रेज टू वी एक्स लिया था, तो मैंने ये एफ एक्स रेज टू जी एक्स लिख दिया, राइट। तो एफ एक्स रेज टू जी एक्स जो फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव ढूंढना है आपको, दैट इज वेरिएबल रेज टू वेरिएबल का, दैट इज डी टी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, राइट। मैं वही फॉर्मूला वापस लिख रहा हूँ, आपको दिखाई देगी फॉर्मूला का क्या आंसर आया था, हाँ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा ना, ओके चलो। तो ये y मीन्स क्या था हमारे पास, यू एक्स रेज टू वी एक्स था, दैट इज एफ एक्स रेज टू जी एक्स, वैसे ही लिख दो जैसा था, तो एफ एक्स रेज टू जी एक्स लिख दो, राइट। और वी हमारा पावर में था वहाँ पे, तो जो पावर है वो ऐसे ही रखना है, तो जी एक्स जो है वो पावर है उसको ऐसे ही लिख दो, तो जी एक्स इंटू आपको लिखना है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, राइट, दिखाई देता है ना, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, मुझे बहुत चाहिए तो मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लिखना है, राइट, प्लस दैट इज ये जो पावर है पावर आगे आ गया, लॉग एफ एक्स हो गया, ये लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एफ एक्स, और एफ एक्स का फिर से एफ डैश एक्स। तो आप अपने दिमाग में भी इसे रख सकते हो कि जो जी एक्स है उसको नीचे ले लो, जी एक्स नीचे ले लिया और ये रह गया लॉग एफ एक्स, क्योंकि हमने लॉग लिया तो लॉग एफ एक्स हो जाएगा ना ये, तो ये लॉग एफ एक्स हो गया, तो लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एफ एक्स और एफ एक्स का फिर से एफ डैश एक्स, प्लस ये जो बेस था लॉग एफ एक्स वो ऐसे ही रह जाएगा, तो लॉग एफ एक्स ऐसे ही रह गया, और जी एक्स का डेरिवेटिव दैट इज जी डैश एक्स। तो ये आपके पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला हो गई, ये क्या हो गई आपके पास शॉर्टकट फॉर्मूला हो गई, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यू में घुसपैठ के लिए सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, राइट। सो अभी हम देखते हैं कि डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स था हमारा, राइट। तो इसका आंसर, ये दो आंसर सेम आए थे और तीसरा भी सेम आंसर लाते हैं हम लोग, देखो एक्स रेज टू एक्स एज इट इज रह गया, पावर नीचे रख दी, राइट। ये इसका डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन दैट इज इसका डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स दैट इज एक्स, प्लस इसका लॉग, सो लॉग एक्स हो गया, राइट, लॉग एक्स हो गया, और इसका डेरिवेटिव दैट इज 1। नाउ कंपेयर द आंसर, दिस इज एक्स रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स हो गया, एक्स रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स हो गया। तो ये फॉर्मूला जो है वो आप नोट कर लेना और अपने जो लिस्ट बनाया है वो लिस्ट में ऐड कर देना, शॉर्टकट्स के लिए बहुत ही काम में आएगी, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं ये फॉर्मूला के लिए, बराबर, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या करना है। सपोज साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स इज गिवन, साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स इज गिवन, दैट इज वाई इज साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स, ये पेज भी भाग भाग करता है, राइट। तो डेरिवेटिव क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, दिस इम्प्लाइज इसका डेरिवेटिव, हम ये शॉर्टकट्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पहले, बाद में हमारे गुजरात बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए कैसे स्टेप लिख के करना है वो भी मैं दिखाता हूँ, राइट। मगर आपको पता है कि हम लोग यही मेथड यूज़ करेंगे, राइट, जब डिस्क्रिप्टिव में मेथड दिखानी है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, तो क्या साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स ऐसे ही लिखना है, तो साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स लिख दिया, राइट। पावर नीचे लेना है कॉस एक्स, बेस था उसका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो गया, राइट, और फंक्शन एज इट इज दैट इज साइन एक्स हो गया, प्लस लॉग इसका तो लॉग साइन एक्स हो गया, राइट, और जो पावर था उसका डेरिवेटिव दैट इज माइनस साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, समझ में आई ना बात, हाँ।
तो आपका जो आंसर है वो क्या आया? तो आपका आंसर आया साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स. Cos x into cos upon sin is cot x plus, sorry, this is minus, so this will be minus sin x into log sin x. आंसर आया sin x into log sin x आया, राइट. यही एग्जाम्पल हम ये जो मैंने ई रेज टू वाले फॉर्मूला से दिखाया वैसे करते हैं. तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, ये जो y है इसको क्या लिख सकते हैं हम y को, तो y इज इक्वल टू ई रेज टू, क्या बोला था मैंने, पावर को आगे ले लेना है cos x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स लिखना है, लॉग ऑफ साइन एक्स लिखना है. ऐसे मैंने बताया था आपको, सही है ना. हाँ, सो ये ई रेज टू ब्रैकेट हो गया. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू ब्रैकेट एज इट इज, सो cos x इंटू लॉग साइन एक्स एज इट इज, और डी डी एक्स ऑफ दिस ब्रैकेट, सो डी डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में क्या है, cos x इंटू लॉग साइन एक्स है. समझ में आता ना क्या करते हैं हम, है ना. तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ई रेज टू कॉस एक्स लॉग साइन एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स, सो दिस इज साइन एक्स रेज टू कॉस एक्स होगा. नाउ cos x एज इट इज, सो cos x एज इट इज. नाउ log sin x का डेरिवेटिव आपको पता है, log sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cot x. यस, वेरी गुड, cot x मैंने आपको बोला था, नोट कर लेना, राइट. तो ये काम आ गई ना फॉर्मूला. नाउ log sin x एज इट इज, और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, राइट. तो आपका देखो ये आंसर और ये आंसर दोनों आंसर क्या ऐसा है, सेम ही है. तो हम ऐसे शॉर्टकट्स भी देखते जाएंगे, राइट. आपको समझ में आया ना कैसे काम करना है. ओके, थैंक यू. सो लेट अस स्टार्ट विथ सम न्यूमेरिकल्स. सो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है एग्जाम्पल नंबर 30, राइट. क्या दिया है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. मैंने अगले लेक्चर में आपको बताया था कि जब आपको कॉम्प्लिकेटेड यू ओपन वी फॉर्म दिया है, साथ में स्क्वायर रूट दिया है, क्यूब रूट दिया है और बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन में फंक्शंस दिए हैं, तो आप बोथ साइड्स लॉग लेके उसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, राइट. तो ये क्या हो जाएगा, इसको जो हम लिखेंगे तो ये ऐसा होता है कि x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, दिस होल रेज टू, उसका पावर जो है वो हाफ आ जाएगा. पावर कितना होगा, हाफ, राइट. सो दिस इज y इज इक्वल टू एक्स रेज टू हाफ हो गया. सपोज दिस इज टोटली x, देन x रेज टू हाफ हो गया. सो टेकिंग log बोथ साइड्स, व्हाट वी गेट, सो log y इज इक्वल टू, log y इज इक्वल टू, पावर है वो आगे आ जाएगा, तो हाफ ऑफ log ब्रैकेट हो जाएगा. तो ब्रैकेट में क्या है, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हो जाएगा. समझ आई बात, राइट. और आपके पास भी रूल है लॉग के, एक तो है log ए बी, दैट इज log ए प्लस log बी होता है, वो आपको पता है. और दूसरा रूल है log ए अपॉन बी इज इक्वल टू log ए माइनस log बी है. ये दो रूल्स जो है वो आपको पता है, राइट. मैंने अगले लेक्चर में बताया था आपको. तो पहले हम ये log ए अपॉन बी वाला रूल यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, तो log y इज इक्वल टू, मैंने आपको आगे भी बोला था कि विकलन में आपको जो डेरिवेटिव निकालना है, राइट. तो डिफरेंशिएशन के लिए आपको क्या करना है, तो कि पहले जितना हो सके इतना सिंप्लीफाई करना है. तो अभी हम सिंप्लीफाई ही करेंगे, तो ये हाफ ऐसे ही रह गया. नाउ log ए अपॉन बी, दैट इज log ए माइनस log बी, तो क्या होगा, log ए इज x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस log बी, बी क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये इसका आंसर आएगा. समझ में ना, log a अपॉन बी इज log a माइनस log b, तो log a अपॉन b दैट इज log a,
log a minus log b. Now again here, this is log a into b, that is sum of the log a plus log b. So applying this formula, log y is equal to half. So this is log a plus log b, that is log x minus 3 plus log x minus 3 प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा माइनस log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, राइट. तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया. अभी हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो उसका डेरिवेटिव निकालेंगे. तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, log y का डेरिवेटिव 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. अब तो आपको पता है चेन रूल अप्लाई करना है तो, और हाफ कांस्टेंट है वो ऐसे ही रह जाएगा, राइट. नाउ दिस इज log a प्लस log b. log ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 ब्रैकेट, और ब्रैकेट का फिर से डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होता है और 3 का 0 तो लिखेंगे नहीं, राइट. प्लस log ब्रैकेट इज 1 ब्रैकेट, और इसका फिर से डेरिवेटिव निकालना है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, राइट, और 4 का 0 तो वो लिखेंगे नहीं, माइनस log ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 ब्रैकेट, सो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, राइट. और ब्रैकेट का फिर से डेरिवेटिव करना है, ब्रैकेट ये था तो इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x हो जाएगा, प्लस 4x का डेरिवेटिव 4 होगा, राइट. अभी हम डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 वगैरह लिखेंगे नहीं तो स्टेप आपका बढ़ता जाएगा और एग्जाम्पल लंबा हो जाएगा, राइट. सो दिस इज dy बाई डी एक्स. और इतनी सिंपल सिंप्लीफिकेशन है वो तो आपको अभी पता चलेगी. सो y अपॉन 2 हो जाएगा ये 1/x माइनस 3, राइट, प्लस ट्वाइस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 होल अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 हो जाएगा, बराबर. तो ये आपका आंसर आ गया, बराबर. तो क्वेश्चन जो था वो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन था और इसका आंसर ये आया. ये जो आंसर आया वो कोई एक भी स्टेप लिखे बिना आप डायरेक्ट ये आंसर भी लिख सकते हो. कैसे करना है वो दिखाता हूँ. दिस फॉर्म आपको है, इसका ये फॉर्म होता है वो आपको पता है, राइट. और आपको log का जो रूल्स है वो भी पता है कि log a प्लस log b होगा ये, और ये log a अपॉन log b है तो log a माइनस log b होगा, राइट. तो जितने मल्टीप्लिकेशन में है उसका एडिशन लेना है और ये अपॉन में जो है उसको माइनस करना है, और log आता है तो इसका सिंपल फॉर्म जो है ये हो जाता है. तो कीप इन माइंड दिस. तो डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई डी एक्स, राइट. और आपको ये करना है कि y है तो y यहाँ लिख ही देना है, तो वो y/2 हो गया, राइट. तो y हो गया. नाउ पावर आपको नीचे लेना है तो पावर नीचे आ गया. नाउ इसका डेरिवेटिव log ब्रैकेट का 1 ब्रैकेट, तो 1 ब्रैकेट हो गया, प्लस इनटू मीन्स प्लस इसका डेरिवेटिव तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 log का होगा तो log x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर प्लस 4, और x स्क्वायर प्लस 4 का अगेन ट्वाइस x हो गया, अपॉन दैट इज माइनस log ब्रैकेट 1 ब्रैकेट, सो 1 दिस इंटू न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ दिस दैट इज 6x प्लस 4. तो आप ऐसे भी इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, राइट. और बाद में लिख देना है आपको यहाँ पे जो आंसर आया वहाँ, या y क्या था तो जो y था वो लिख देना है, वेयर y इज इक्वल टू क्या दिया था हमको, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 दिया था वो लिख दिया, राइट. तो हम ऐसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करके एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, राइट. इसके बाद जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 31 था. एग्जाम्पल नंबर 31 जो है वो ऐसा है, वो तो आपको पता ही है मगर हमें आंसर लाना है. दिया है कि फॉर एनी कांस्टेंट, राइट, a फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू x. सो हम एज्यूम कर लेते हैं दिस इज y इज इक्वल टू a रेज़ टू x. सर ये तो हमें पता है, डेरिवेटिव के फॉर्मूला हो गया, हाँ मुझे पता है, मगर आपको प्रूव करके लाना है अभी. तो क्या करेंगे, हम इसको e के फॉर्म में लिख देते हैं. तो e रेज़ टू पावर को आगे लेना है तो x log a हो जाएगा,
पता चलता है ना आपको। क्या किया हमने, ई रेस टू लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू एक्स, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, राइट। सो ये क्या हो गया, ई रेस टू ब्रैकेट हो गया। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू ब्रैकेट का डेरिवेटिव, ई रेस टू ब्रैकेट दैट इज ए रेस टू एक्स, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, चलेगा ना, यही रहेगा तो ये इसका ए रेस टू एक्स लिख दिया, और डी डी एक्स ऑफ ब्रैकेट दैट इज एक्स इंटू लॉग ए होगा। नाउ ए रेस टू एक्स एज इट इज एक्स इंटू लॉग ए, यू इंटू वी दिखाई देता है मगर लॉग ए तो कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट कम्स आउटसाइड, सो लॉग ए एज इट इज और एक्स का डेरिवेटिव 1। तो क्या आया आंसर आपका, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। आपको पता होगा जब मैंने ये पहले फॉर्मूला लिखी थी, आपको बताया था कि वाई इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ये होगा, तब मैंने ये डायरेक्ट फॉर्म लिख दिया था, राइट। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 32, एग्जाम्पल नंबर 32 हम सॉल्व करेंगे। वो दिया है एक्स रेस टू साइन एक्स, क्या दिया है, एक्स रेस टू साइन एक्स वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0, क्या दिया है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 दिया है, राइट। इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज दिस इज वाई, राइट। सो वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू साइन एक्स, क्या करेंगे, बोथ साइड्स लॉग लेना है कि ई टू द पावर में लिख के करना है, ई टू द पावर में लिख के करेंगे वही अच्छा रहेगा ना। तो वाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, ई रेस टू पावर को आगे लेना है दैट इज साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ बेस, सो बेस इज एक्स, लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा, ये हमारा ई पावर में हो गया, अप्लाइंग फॉर्मूला, राइट। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ दिस dy by dx is equal to e raised to sin x into log x into ddx of bracket that is sin x into log x हो जाएगा into log x, right। Now e raised to sin x into log x that is our x raised to sin x, so this is x raised to sin x होगा, right। और sin x इंटू लॉग एक्स तो u इंटू वी हो गया, साइन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, तो ये आपका आंसर भी आ गया, राइट। सो क्या आंसर आया आपका, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू साइन एक्स, एक्स रेस टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स आंसर आया, इंटू कॉस एक्स आंसर आया। मगर टेक्स्ट बुक में जो है वो आपकी ऐसा आंसर नहीं दिया, इसका मल्टीप्लाई करके दिया है, तो ये जो है वो दोनों का बेस सेम है, सो एक्स का पावर 1 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, एक्स रेस टू साइन एक्स माइनस 1 इंटू साइन से मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स होगा, राइट। प्लस ये इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, एक्स रेस टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स एक्स हो जाएगा, इंटू कॉस एक्स एक्स हो जाएगा, राइट। तो ये आंसर आपका आया, पता चला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 33, जो 33 नंबर का एग्जाम्पल है इसमें ये ऐसा दिया है कि y रेस टू एक्स प्लस एक्स रेस टू वाई प्लस एक्स रेस टू एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू बी, इज इक्वल टू ए रेस टू बी दिया है, और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, राइट। तो देखो दिस इज वेरिएबल रेस टू वेरिएबल फॉर्म, दिस इज वेरिएबल रेस टू वेरिएबल फॉर्म एंड दिस इज ऑल्सो वेरिएबल रेस टू वेरिएबल फॉर्म, तो हम इसको e की पावर में लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे, दिस इज e रेस टू पावर है उसको आगे लेना है और बेस का लॉग लेना है, तो क्या होगा, x लॉग y होगा, राइट, प्लस x रेस टू वाई क्या होगा, e रेस टू पावर है आगे लेना है, बेस का लॉग लेना है तो लॉग x हो जाएगा, प्लस
पावर को आगे लेना है e टू पावर में, तो x बेस को log देना है, तो log x हो गया इज इक्वल टू, नाउ दिस इज a रेस टू b, दिस इज कॉन्स्टेंट रेस टू कॉन्स्टेंट, राइट। तो इसको एज इट इज ही रखते हैं क्योंकि उसका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा। ये समझ में आई ना बात? हाँ, हमने कौन सी फॉर्मूला अप्लाई की? e रेस टू log x बेस ही होगा, तो आंसर क्या आता है? x। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। नाउ e रेस टू ब्रैकेट, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू ब्रैकेट इज e रेस टू ब्रैकेट दैट इज e रेस टू x log y and d dx of bracket, so d dx of bracket is x into log y। यहाँ पे हम लिखते हैं ये स्टेप क्योंकि गलती होने का चांसेस ज़्यादा है। प्लस e रेस टू ब्रैकेट का डेरिवेटिव, तो e रेस टू ब्रैकेट, राइट, और ब्रैकेट का डेरिवेटिव अगेन, सो d dx ऑफ y into log x प्लस e रेस टू ब्रैकेट, सो e रेस टू ब्रैकेट, राइट, सो e रेस टू x इंटू लॉग x और ब्रैकेट का डेरिवेटिव दैट इज d dx ऑफ x इंटू लॉग x, और ये कॉन्स्टेंट रेस टू कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो हो गया, तो अभी से इनको जीरो लिख लेते हैं, राइट। हमने आगे देखा था, इसका डेरिवेटिव आपको पता रखना है, राइट। इसका जो आंसर आया था वो हमारा आंसर ऐसा आया था, डी वाई बाई डी एक्स जो फाइंड किया तो एक्स रेस टू एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। तो आपको ये फॉर्मूला की तरफ इसको याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एक्स इज एक्स रेस टू एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स होता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम सेविंग में काम आएगा। तो अपनी जो लिस्ट बनाई है इसमें लिख देना डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एक्स जो है वो होता है एक्स रेस टू एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, राइट। मगर हम तो यहाँ पे फाइंड करेंगे, राइट, दिखाई देता है ना आपको? या फाइन। नाउ मैं थोड़ा इस तरह से लिखता हूँ तो आपको आराम से दिखाई देगा। नाउ दिस इज e रेस टू एक्स लॉग वाई इज नथिंग बट y रेस टू एक्स था, उसको ये फॉर्म में लिखा था, सो y रेस टू एक्स एज इट इज। नाउ u इंटू वी, u इंटू वी, एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई इज वन अपॉन y and y is there, so applying chain rule dy by dx plus log y as it is and derivative of x is 1, derivative of x is 1, right? समझ में आई ना बात? ओके, सो ये फिनिश हो गया। प्लस ये e रेस टू वाई लॉग एक्स, e रेस टू वाई लॉग एक्स ये था और ये कौन था? x रेस टू वाई, तो x रेस टू वाई एज इट इज लिख देते हैं, तो x रेस टू वाई। नाउ y एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इज वन अपॉन x, इज वन अपॉन x और प्लस log x एज इट इज, सो log x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज dy बाई dx, राइट। चेन रूल अप्लाई किया, ओके, चलो। प्लस दिस इज e रेस टू x log x दैट इज e रेस टू x इंटू लॉग x इज नथिंग बट x रेस टू x, सो x रेस टू x, राइट। नाउ x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव वन अपॉन x आता है, प्लस log x एज इट इज और x का डेरिवेटिव वन आता है, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू क्या हुआ? जीरो हो गया। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और इसमें से dy बाई डी एक्स जो है वो फाइंड करना है, राइट। तो मल्टीप्लाई करके dy बाई डी एक्स वाली टर्म इक्वेटिंग करेंगे, तो इसमें dy बाई डी एक्स आएगा, दूसरा इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो dy बाई डी एक्स आएगा, यहाँ पे तो dy बाई डी एक्स है ही नहीं, तो इसमें से dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे। तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा तो ये y बेस है, इसका भी y बेस है, उसको ऊपर ले लेंगे तो क्या होगा? y रेस टू एक्स माइनस वन होगा, राइट। तो x इंटू वाई रेस टू एक्स माइनस वन हो जाएगा, ये x इंटू वाई रेस टू एक्स माइनस वन हो जाएगा, राइट। ये है, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा? प्लस एक्स रेस टू वाई इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, और दोनों में से हमने dy बाई डी एक्स कॉमन लिया, सो टेकिंग dy बाई डी एक्स कॉमन, सो दिस इज दिस। नाउ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन बाकी है, तो वो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? y रेस टू एक्स इंटू लॉग वाई होगा, राइट। ये मल्टीप्लिकेशन भी बाकी है, मगर इसमें देखो ये बेस x है, इसका भी बेस x है, तो क्या होगा? y रेस टू माइनस वन होगा, तो क्या होगा? प्लस x रेस टू वाई माइनस वन इंटू वाई, ये y तो होगा ही, प्लस x रेस टू x, x रेस टू x, ये x है, राइट, x रेस टू x, और ये क्या होगा? वन प्लस लॉग एक्स,
सो 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा देखते हैं। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये सामने जाएगा पूरा टर्म तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिख देते हैं, राइट। सो क्या होगा, वाई रेज टू एक्स इंटू लॉग वाई प्लस वाई इंटू एक्स रेज टू वाई माइनस वन प्लस एक्स रेज टू एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स, राइट। ये पूरा सामने गया माइनस हो गया, और ये जो मल्टीप्लिकेशन में था वो डिवाइड हो जाएगा, तो होल अपॉन एक्स इंटू वाई रेज टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स रेज टू वाई इंटू लॉग एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया, बराबर। ये जो एग्जाम्पल था वो हम ऐसे भी कर सकते हैं, मगर आप लोग उसमें गलती करते हैं, इसलिए मैंने नहीं बताया कि आप इसको u ले लो, सपोज दिस इज u, इसको आप v एज्यूम कर लो, इसको आप w एज्यूम कर लो, और u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू a रेज टू b लेके आप सॉल्व कीजिए, राइट। तो आप लोग क्या करते हैं कि ये u लिया तो u का y रेज टू एक्स हो गया, तो इसको बोथ साइड u का लॉग लेना है, तो लॉग ये जो लिया तो लॉग u, बराबर। तो लॉग u इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग वाई होगा, राइट। क्योंकि हमने ये u लिया, ये v लिया, ये w ले लिया। आपको नहीं दिखाई ले, इसे फिर से बताता हूँ कि हम आपने ये u ले लिया, इसको v बोला और इसको w बोल दिया, तो u v w इज इक्वल रेज टू b हो गया। तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ये ऐसा करते हैं कि u इज इक्वल टू वाई रेज टू एक्स है वो लेना है और इसका लॉग लेना है, तो आप क्या करते हैं, इसका ले लेते हैं। क्या लिखते हैं आप लोग, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स करना है, तो इसके जगह आप यहाँ भी लॉग ले लेते हैं, लॉग यू प्लस लॉग वी प्लस लॉग डब्ल्यू। दैट इज़ रॉन्ग, सो दैट्स वाई मैं ये आपको डेंजरस है इसलिए नहीं बताया मैंने, मगर ये आपको पता भी है, आपने प्रैक्टिस भी किया है अभी तक, तो ये आपको अच्छा रहेगा। तो यही मेथड अप्लाई करके आपको सॉल्व करना है।